Congrats. Today we will discuss the power system. First, the subject code is the KMali 501. My name is Ashwini Kumar, PhD scholar at Gautam Buddha University, Greater Noida. The unit covers the generation, introduction and the load curve. But in this lecture, we will cover the unit second, transmission and distribution of electric power first. For this single line diagram of the power system, choice of transmission voltage, different kind of supply. Further, we will discuss configuration of transmission line, corona, and the effect of corona power loss, advantage and disadvantage. After that, we will discuss further video performance of line, representation of lines, short transmission lines, medium length line, nominal T pi representation and ABCD constant. Also there is the Ferranti effect. For this, what is the single line diagram of the power system? Before that, we have to understand the power system. What is the power system? We discuss in the unit first what is the power system. Basic, the power system is the interconnection of the generation unit. Further, it will go to the step up and there is the transmissions unit, this, and this is the distribution unit. This is the distribution unit, this is the transmission unit, and this is the generation unit. The combination of generation, transmission and distribution is known as the power system. Okay, now we will discuss the single line diagram. What is the single line diagram? Actually, in this single line diagram we are work with generation station. Generally, generation station like hydro, steam turbine and other generation unit generate the power at the 11 kV generation. It is also generated at 11 to 25 kV, but mostly 11 kV generation. After that, we work with the primary transmission. Before the primary transmission, we need to अपडेट इट्स वोल्टेज 11 टू 132 kV. क्यों हम करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो लॉसेज होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो रिड्यूस हो जाए. वी नो दैट द लॉसेज विल डिपेंड ऑन द आई एंड रेजिस्टेंसेज आई स्क्वायर आर. इफ वी कनेक्ट द ट्रांसमिशन वोल्टेज हाई लेवल, अगर हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, करंट, जैसे वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है वो पावर के बराबर होता है. अगर हमने वोल्टेज को बहुत बढ़ा दिया तो आई क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी आई. तो आई स्क्वायर इंटू आर, जो लॉसेस हैं इट विल बी मिनिमाइज और रिड्यूस एंड ये डाउन हो जाएगा. तो हम इसीलिए वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना है. और एंड द सेकेंड वन, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले जनरेशन 11 kV, आफ्टर दैट वी एक्सटेंड इट 132 kV. दिस इज द known as the step up transformer. After that, this line will be called at the primary transmission line, high voltage line or extra high voltage line. After that, we will move the secondary line like the step down transformer. This will down 132 oblique 33 kV. This is the step down transformer. Also here, where we can send this 33 kV to medium voltage bulk consumer. Like there is the, suppose there is a generation in uh, for any company, and after generation from any power source, like there is the Dadri power plant in the Greater Noida, and we move to step up, and it will go to the Kanpur, and at that there will be step down, and there will be many factories. Then we can move that, जो हमारे वहाँ पे, जैसे हमने दादरी ग्रेटर नोएडा से हमने क्या किया, जनरेशन किया एनटीपीसी से, उससे हमने कानपुर में लाइन भेजी, और कानपुर के पास सपोज़ करिए वहाँ पे कोई कंपनी लगी है कानपुर, और
लखनऊ के बीच में, तो वहाँ पे हमने बल्क कंज्यूमर के पास डायरेक्ट यहाँ भेज देते हैं। और मीडियम वोल्टेज का ट्रांसमिशन क्या करते हैं, हम कहीं और दूसरे एरिया में भेज देते हैं। इसके बाद होता है आपका कंटिन्यूअस, ये जो लाइन है आपकी आगे बढ़ती है, ये फर्दर क्या होती है आपकी, स्टेप डाउन होता है ट्रांसफार्मर 33/11। दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। अब इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 33/6.6 केवी कन्वर्ट कर देगा, या 33/3.3 केवी कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। ये लार्ज कंज्यूमर्स हैं, वहाँ चला जाएगा, लार्ज कंज्यूमर्स में चला जाएगा। और इसके बाद है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेक्शन कहलाता है। ये सेक्शन क्या कहलाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन क्या होता है आपका, जो ट्रांसफार्मर लगा होता है एक, दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अगेन जो स्मॉल कंज्यूमर्स होते हैं उसके लिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। तो दिस इज द लो वोल्टेज, और द 0.4 केवी मीन्स 400 वोल्टेज फीडर्स होते हैं जो हमारे हाउस होल्ड घरों में जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं लो वोल्टेज लाइन जो होती है वो क्या होती है, 0 से लेके 1 केवी की होती है, एलटी लाइन कहलाती है। इंडोर सब स्टेशन होते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है, 1 केवी से 50 केवी के बीच की लाइन होती है, 50 केवी की लाइन होती है। हाई वोल्टेज लाइन होती है, 50 केवी टू 200 केवी लाइन होती है। एक्सट्रीम हाई वोल्टेज लाइन क्या होती है आपकी, 200 केवी टू 760 केवी होती है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन क्या होती है आपकी, 760 केवी बियॉन्ड होती है आपकी अल्ट्रा हाई केबल लाइन होती है। इसमें एक बार आप चाहो तो फिर से देख सकते हो, दिस इज द जनरेटिंग स्टेशन। फर्दर हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं प्राइमरी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू हम 11 से 132 केवी करते हैं। फिर इसके बाद स्टेप डाउन होता है आपका, ये कहाँ तक जाता है आपका, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक जाता है। दिस इज लाइन द सब ट्रांसमिशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन होती है। फिर इसके बाद जो होता है आपका, ये लार्ज कंज्यूमर्स को डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। फर्दर हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं, वेयर हमारा जो स्मॉल कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास ये चली जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद कुछ सिंबल्स हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सिंबल्स, सिंबल क्या क्या है इसमें। जैसे एसी रोटेटिंग मशीन्स जनरेटर है तो उसके लिए इस तरह से डिनोट करते हैं, जी फॉर जनरेटर, एक्स इसका जो रिएक्टेंस है, और दिस इज द सिंबल, दिस इज द सिंबल, एंड दिस इज द अल्फामेरिक। दिस इज द फॉर मोटर, सेम सिंबल होता है, मोटर बस डिनोट करते हैं। एसी रोटेटिंग मशीन्स आर मोटर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए इस तरह से बनाया जाता है, और इस तरह से सिंबॉलिक हम उसको शो करते हैं। थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए दिस इज द थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और सिंबॉलिक इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर इज लाइक दिस, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज लाइक दिस। करंट ट्रांसफार्मर का सबको पता है, ये एक लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को एक सिंगल वाइंडिंग, और इधर इधर हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द पावर सर्किट ब्रेकर, दिस इज द पावर सर्किट ब्रेकर, द डेल्टा कनेक्शन लाइक दिस, एंड after delta connection, star connection neutral isolated like this, star connection neutral solidly grounded like this, star connection reactor earth neutral like this, एंड द आइसोलेटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। दिस इज द बस, इट इज कॉल्ड द बस। ओवरहेड लाइन, दिस इज द ओवरहेड लाइन। कंपोनेंट ऑफ द पावर सिस्टम, हमारे पास कंपोनेंट क्या क्या है पावर सिस्टम के, सिंक्रोनस जनरेटर, जनरेटर और अल्टरनेटर इज मेन रोल इज ड्रिवन बाय टरबाइन, दस कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी रोटेशनल जो होती है हमको स्टीम से या हाइड्रो पावर से रोटेशनल मिलती है, जो टरबाइन से हमको उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। मेनली स्टीम टरबाइन और हाइड्रोलिक टरबाइन आर यूज्ड। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टेप अप स्टेप डाउन द वोल्टेज एंड वेरियस स्टेजेज ऑफ द डिफरेंट लेवल। इसके बाद करते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन, कनेक्टिंग के लिंक है आपका किसके बिटवीन,
जनरेटर स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बीच में होता है आपका। बस बार क्या होती है? बस बार टर्म यूज्ड द मेन बार कंडक्टर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट विच इज कनेक्टेड कनेक्शन में भी मेड। जनरली होता है आपका मेन जो जनरेशन यूनिट होती है वहाँ से इस ट्रांसमिशन लाइन जो होती है सेक्शन ट्रांसफार्मर तक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक, उसके बीच की जो लाइन होती है उसे बस बार बोलते हैं। जनरली रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये मेटल ही होता है आपका, कॉपर का है, एल्युमिनियम का, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, थिक होता है और एक करंट कैरी करता है। जैसे कनेक्शन वायर के थ्रू करते हैं वैसे का बार के थ्रू हम डायरेक्ट जनरेशन यूनिट जो जनरेटर है वहाँ से लेके बाहर का जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जहाँ से ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट होती है वहाँ तक कनेक्ट करते हैं। आइसोलेटर इज इसेंशियली अ नाइफ स्विच विच इज डिजाइन टू ओपन और सर्किट अंडर नो लोड। मीन्स क्या है आपका, ये नाइफ स्विच जैसा होता है आपका, आप उसको देख सकते हैं। और नाइफ स्विच होता है आपका, मैं दिखा देता हूँ आपको व्हाट इज द नाइफ स्विच। दिस इज द नाइफ स्विच। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द नाइफ स्विच। ये क्या है आपका? नाइफ स्विच है। इसमें डिफरेंट कैटेगरी होती है और इसमें मल्टीपल ये होते हैं, ट्रिपल पोल, डबल पोल, ये सारी चीज़ें हैं। आप फर्दर अलग से जब नेक्स्ट पावर सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें आपके लाइफ में ये नाइफ स्विच है, ट्रिपल है। वैसे ये वेरियस टाइप के नाइफ स्विचेस आप चाहो तो चेक कर सकते हो नेट पे भी। ओके। इसके बाद है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर और सर्किट ऑटोमेटिकली अंडर फॉल्ट कंडीशन। ये क्या होता है आपका? आपने घरों में भी देखा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जैसे कहीं शॉर्ट सर्किट या कुछ होता है तो आपका लाइट ब्रेक कर जाती है। वैसे मेन सप्लाई में सर्किट ब्रेकर होते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन यानी जो वोल्टेज है या करंट है शॉर्ट सर्किट या ओवर वोल्टेज केस में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मेक और ब्रेक द सर्किट आइदर मैनुअली और बाय रिमोट कंट्रोल अंडर द नॉर्मल। इसके डिफरेंट कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशंस में। ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं, OIL, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड द SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर जो होता है आपका 765 kV यानी बियॉन्ड 400 kV हम यूज़ करते हैं। हम कम पे भी यूज कर सकते हैं बट इकोनॉमिकली हम यूज़ करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। हाई वोल्टेज की लाइन्स में यूज़ करते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है हाई वोल्टेज की लाइन में। एयर ब्लास्ट भी यूज़ करते हैं और ऑयल सर्किट ब्रेकर जनरली हम 33 kV तक ही यूज़ करते हैं, ये आप बाद में पढ़ोगे। और ग्रिड, ग्रिड क्या है था आपका? जैसे इंडिया में वन ग्रिड है, इससे पहले आपके रीजनल ग्रिड थे और स्टेट ग्रिड थे, फिर बाद में नेशनल ग्रिड बना आपका। होता क्या है, जितने जनरेटिंग स्टेशन हैं आपके पूरे इंडिया में वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं मेन लाइन के थ्रू। आप वहाँ जनरेशन जो इनका होता है उसमें हम फीडअप करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वहाँ से हम मेन लाइन से कनेक्शन को ले सकते हैं। एन इंटरकनेक्शन पावर स्टेशन पावर सिस्टम covering a major portion of a country's territory is called the grid. State grid, regional grid and national grid. What is the state grid? Interconnection of generating station within a state called the state grid. Regional grid क्या होता है आपका? When the different state grid interconnected through transmission line called the tie line, it is known as the national grid. National grid क्या है आपका? National grid different regions grid are interconnected through transmission line. This is known as the national grid. What is the bus bar? बस बार क्या होती है आपकी? आउटडोर बस बार, स्ट्रेन टाइप बस बार होती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये बस बार होती हैं आपकी। टाई लाइन विद द स्विचेस, ये स्विचेस होते हैं टाई लाइन के थ्रू। और इसमें आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हैं। दिस इज द सिंगल बस बार, सिंगल बस बार है आपका। ये इंडिया का है। ये सपोज करिए क्या है आपका, रीजन ए, रीजन ई, रीजन बी, रीजन सी एंड रीजन डी। ये ग्रिड है आपका। इंडिया में पहले 5 रीजन्स थे। तो नॉर्दर्न था, वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथर्न एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न, ये डिफरेंट टाइप